Okay, friends, so let's continue with exercise 5.4. Question number 9. Show that vector area of quadrilateral ABCD is half AC bar cross BD bar, where AC and BD are its diagonals. Now, see, scalar area and vector area both are different. Answer of a scalar area will be a scalar quantity. ठीक आहे, म्हणजे आपण जो काय आतापर्यंत एरिया हा टर्म आपण यूज करत होतो, so that is always a scalar area. Here we have to find out vector area. So answer of this will be obviously in terms of vector, and you can also observe it from there also. AC bar cross BD bar. So this is a vector product, and we have not taken mod over here. Remember, we have not taken mod. ज्या ठिकाणी मॉड येणार त्या ठिकाणी स्केलर क्वांटिटी होणार, तो स्केलर एरिया म्हणजे फक्त एरियाच म्हणून येणार आपण. ठीक आहे, तो असणार. पण ज्या ठिकाणी मॉड नाहीये, इट मीन्स दिस इज अ वेक्टर एरिया. सो यू हैव टू प्रूव दैट इन एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD वेक्टर एरिया इज हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स. ठीक. ओके, सो लेट अस प्रूव दिस ओवर हियर. स्टार्टिंग विथ वेक्टर एरिया of quadrilateral ABCD is equal to vector area of triangle. Now we'll divide this in terms of two triangles, taking either BD as the diagonal or AC as the diagonal. We'll divide this in two parts. So let us say first part is this one, A, B, C. Okay. So this is equal to vector area of triangle ABC plus vector area of triangle. Another triangle is ADC. Okay. Vector area of triangle ADC. Now you can also divide it using ABD and BDC. That can also be done using diagonal BD. Now we are using diagonal AC. Diagonal AC is now common to both the triangles. Okay. So let us find out vector area of triangle ABC. Notice area of triangle ABC was in formula for area of triangle ABC. It is half mod of. But since this is vector area, we will not take mod. We will just write down the vectors. That is the adjacent sides or vector product of adjacent sides of triangle ABC. And they are what? AB and AC. Adjacent sides AB and AC. So write it as AB bar cross AC bar. Similarly, cross vector area triangle ADC triangle. Okay, so I have to take one side as AC. So obviously another side will be CD. Okay, so here consider this as half AC bar cross AD bar. If we are taking AC bar, then we have to take AD bar. If we are taking CA bar, then we have to take CD bar. Adjacent sides in the same direction. Okay, taking the common point as the initial point. Clear? So you were mentioned from AB bar, AC bar, and then AC bar, AD bar. Okay? This can be solved by using multiple methods. You can also take CA bar and CD bar. One and the same thing. यहाँ पर ठीक है, उसी तरीके से आ जाएगा. नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? अब देखिए दोनों की जगह पर हाफ कॉमन है, तो हमने हाफ कॉमन ले लिया. ब्रैकेट में हो जाएगा AB बार क्रॉस AC बार प्लस AC बार क्रॉस AD बार. नाउ टू यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पर AC बार है तो ये वाला AC बार हमें पहले होना चाहिए, तभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगा. देखिए हमें तैयार करना है हाफ AC बार, तो हाफ तो है, तो AC बार अगर आपको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, तो हमें AC बार कॉमन लेना होगा. और कॉमन लेने के लिए आप ऐसे कॉमन नहीं ले सकते. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, मतलब अगर यहाँ पर फर्स्ट AC बार है तो AC बार शुड बी फर्स्ट, एंड दैट कैन बी डन बाय यूजिंग हाफ इन ब्रैकेट. ठीक है, अब ये वेक्टर प्रोडक्ट को अगर मैं दिस इज A बार क्रॉस B बार, अगर मुझे B बार क्रॉस A बार लिखना है तो मुझे लिखना होगा माइनस AC बार माइनस AC बार क्रॉस AB बार.
ठीक है, हमने वेक्टर प्रोडक्ट को रिवर्स कर दिया, कब रिड्यूस कर दिया, तो माइनस साइन लेना होगा, प्लस इधर है AC बार क्रॉस AD बार, ब्रैकेट कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट, दिस इज हाफ इन ब्रैकेट, अभी भी यहाँ पर AC बार नहीं है, माइनस साइन है, माइनस साइन हम AD बार को अप्लाई कर देते हैं, सो दिस बिकम्स व्हाट, AC bar cross. Now minus AB bar minus AB bar is nothing but BA bar. Bracket complete plus यहाँ पर है AC bar cross AD bar. Now this is equal to what? Half. अब AC bar हो जाएगा कॉमन दोनों में, ठीक है, तो हमने लिख दिया AC bar कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर एक BA bar, इसमें साइन आएगा प्लस, इधर होगा AB bar। चलिए मुझे AC bar क्रॉस लिखता हूँ, AC बार क्रॉस, ये हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इधर होगा BA बार प्लस AD बार। नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट AC बार क्रॉस, नाउ BA बार प्लस AD बार इज नथिंग बट BD बार, A इज अ कॉमन, ठीक, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं BA बार मतलब BA बार, तो डायरेक्शन इस साइड पे होगा, AD बार AD बार इस साइड पे डायरेक्शन होगा। Now using triangle law of vector addition, this BA bar plus AD bar is nothing but BD bar. इधर आपका addition है, clear? So BA bar plus AD bar becomes BD bar, and this is nothing but your result. Hence, true. Now remember, this question can be changed as, अगर मुझे इस क्वेश्चन को अलग तरीके से चेंज करना है, पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में देना है, so I can also write it as half in bracket। अब AC बार मतलब पोजीशन वेक्टर में हो जाएगा C बार माइनस A बार क्रॉस BD बार मींस D बार माइनस B बार। तो आप यहाँ तक सॉल्व करेंगे, लास्ट में ये हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन चेंज करना है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन चेंज करना, देखिए क्वेश्चन अब चेंज कैसे होगा, सो दैट वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज हाफ इन ब्रैकेट C बार माइनस A बार क्रॉस D बार माइनस B बार, where AC and BD are its diagonals and A bar, B bar, C bar, D bar are position vectors of the points A, B, C, D. तो क्या क्वेश्चन चेंज, ठीक है, इस तरीके से, बट सॉल्व पूरा आप इसी तरीके से करोगे, लास्ट स्टेप में यहाँ पर आप ये वाला मेंशन कर दोगे, क्लियर? सो इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट आस्क मी। I'm just checking the messages if any. Okay, fine. Now, question number 11. If A bar, B bar, C bar, D bar are vectors such that A bar cross B bar is equal to C bar cross D bar and A bar cross C bar equal to B bar cross D bar. Prove that A bar minus D bar parallel to B bar minus C bar. Yes. Now see, this question can be solved using again dot product and vector cross product, but here since given terms are in cross product, we will solve it using cross product only. It cannot be solved using dot product.
क्योंकि पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर दोनों भी केसेस आप डॉट प्रोडक्ट में भी वेरीफाई कर सकते हैं, फिर प्रूव कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट की कंडीशन क्या है? तो टू नॉन जीरो vectors, two non-zero vectors are parallel if their vector product is zero. Clear? Two non-zero vectors are parallel if their vector product is zero. A bar cross B bar is equal to mod A bar mod B bar sin theta. Sin theta, theta अगर parallel है मतलब theta zero है, sin zero zero हो जाएगा. Vector product zero होना चाहिए, then the vectors are parallel, or you can also see it as collinear. यहाँ पर parallel हमें show करना. It means what? We have to find out cross product of this. We have to prove that this is equal to zero. We have to find out cross product of these two vectors. So now A bar minus B bar cross B bar minus C bar. Let us find out this product. अब देखिए using the rules of multiplication. Clear? A bar cross B bar होगा सबसे पहले, फिर होगा A bar cross minus C bar. A bar cross minus C bar. So it will become minus A bar cross C bar. Then next होगा यहाँ पर minus B bar cross B bar. Minus minus last में होगा plus B bar cross C bar. Now we know that A bar cross B bar equal to C bar cross D bar. ठीक है? तो यहाँ पर A bar cross B bar को कर देंगे, जिसको हमने रिप्लेस कर दिया. A bar cross B bar is C bar cross D bar. Again, A bar cross C bar is B bar cross D bar. तो जो A bar cross C bar है, इसे हम कर देंगे B bar cross D bar. ठीक, आंसर हमें जीरो होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए. तो हमने दो जगह पर यूज कर लिया. अब जो माइनस डी बार क्रॉस बी बार है, ये कट होगा किसके साथ? डी और डी के साथ. लेकिन ये माइनस आया डी बार क्रॉस बी बार, तो इसको हम कर लेते हैं प्लस. तो मैंने इसका साइन अगर चेंज कर दिया तो डी बार क्रॉस बी बार का हो जाएगा डी बार क्रॉस डी बार. फिर इसको भी हम कर देंगे प्लस है, इसे कर दिया हमने माइनस, तो ये हो जाएगा सी बार क्रॉस डी बार. Now, as you can observe, these two are like terms. ये कैंसल हो जाएंगे. And these two are like terms. ये भी प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस था, ये प्लस माइनस है, ये भी कट हो जाएगा. Your answer comes out to be जीरो बार. हम लिख देंगे जीरो बार. वेक्टर प्रोडक्ट है तो बार में आंसर होना चाहिए, तो जीरो बार. And therefore what? A bar minus B bar, the first vector, parallel to second vector, that is B bar minus C bar. क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा ध्यान में रखिए, कम्युलेटिव आपको बहुत बार यूज करना पड़ेगा टू मेक सिमिलरिटी. जैसे यहाँ पर, ठीक है, हमने ये यूज किया था माइनस ए बी बार माइनस और ए बी बार, इसको हमने लिख दिया प्लस बी ए बार. ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट में कम्युलेटिव आपको साइन के हिसाब से चेंज करके यूज करना होगा. क्वेश्चन नंबर 13. Find A bar if A bar cross I cap plus 2A bar minus 5J cap is equal to 0. We should say it as a zero bar. Question में zero bar नहीं, zero. So here we have to find out the vector A bar such that A bar cross I cap plus 2A bar minus 5J cap equal to 0 bar. But A bar is a vector, so it must be of the form let A bar is equal to X, I cap, Y, J cap, Z, K cap. ठीक, अब यहाँ पर देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर एडिशन है, 2A bar माइनस
this is another vector, this is another vector. So we need to find out first a bar cross I cap. ये पहले निकाल लेते हैं. So therefore a bar cross I cap is nothing but a bar हमने लिख दिया x I cap, y j cap, z k cap cross I cap. What is I cap? यहाँ पर already it is I cap. Now this becomes what? See, in terms of cross product. In terms of cross product, we can also have to find out this cross product using determinant I, J, K. आप ये वाला स्टेप लिखिए या फिर नहीं लिखिए, डजेंट मैटर. अगर मैंने ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट शो कर दिया तो पहला वेक्टर फर्स्ट रो में आएगा आई जे के, सेकंड वेक्टर में होगा, सेकंड रो में होगा ए बार. ए बार इज नथिंग बट क्या कंपोनेंट्स ए बार के एक्स वाई जेड. यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई जेड. ठीक. लास्ट इसमें होगा आपके पास लास्ट रो में आई कैप. आई कैप मींस ओनली 1 0 0. ठीक है. ए बार क्रॉस आई कैप. तो फर्स्ट रो में क्रॉस प्रोडक्ट है तो वी आर फाइंडिंग यूजिंग डिटरमिनेंट. फर्स्ट रो में आई जे के, सेकंड रो में ए बार के कंपोनेंट एक्स वाई जेड, थर्ड रो में आई कैप के कंपोनेंट. अब आई कैप के कंपोनेंट क्या हो गए? आई कैप का कोएफिशिएंट 1, जे कैप नहीं है 0, के कैप नहीं है 0. एंड देन वी कैन फाइंड आउट इट आंसर एज आई कैप in bracket this is 0 minus 0, then minus j cap in bracket again x into 0 that is 0 minus z into 1. ठीक है. प्लस हो जाएगा k cap in bracket x into 0 0 minus y into 1 y. So this becomes what? It is equal to, ऐसे 0 हो जाएगा. चलिए लिख लेते हैं 0 I cap minus z into minus j. So it is plus z j cap and this is minus y j cap. So using determinants. Now see in this type of cross product, यहाँ पर आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं. अगर हमें डायरेक्टली निकालना है तो भी हम डायरेक्टली भी यहाँ पर निकाल सकते हैं. आई कैप विल बी गेट मल्टीप्लाइड विद ईच एंड एवरी वन. ठीक है. तो अगर मुझे डायरेक्ट करना है मान लीजिए, क्योंकि ये छोटा वेक्टर है ना, सेकंड वेक्टर इज अ स्मॉल वन. ऐसे नहीं है, यहाँ पर खाली वन कंपोनेंट है. अगर यहाँ पर मान लीजिए तीनों भी कंपोनेंट होते थे, इस टाइप से डायरेक्ट करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा. डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना क्रिटिकल हो जाएगा. बट क्योंकि यहाँ पर सेकंड वेक्टर इज हैविंग ओनली वन कंपोनेंट, that is only I cap, so we can multiply directly also. देखिए x I cap cross I cap हो जाएगा. पहले तो x I cap cross I cap. ठीक है. नेक्स्ट y j cap cross I cap, तो प्लस होगा y j cap cross I cap. नेक्स्ट होगा z k cap cross I cap प्लस जेड कैप क्रॉस आई कैप. क्योंकि ये भी एक मालूम होना चाहिए आपको डायरेक्टली की स्टेप्स. कभी कभी डायरेक्टली भी हमें करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली भी मल्टीप्लिकेशन मालूम होना चाहिए. दोनों वेक्टर्स हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई, फर्स्ट वन विद फर्स्ट वन, सेकंड वन, देन थर्ड वन. ठीक. अब इसका आंसर देखिए क्या आता है. एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप इज ऑलवेज 0. आई कैप क्रॉस आई कैप इज ऑलवेज 0. यहाँ पर हमने देखा अगर पैरेलल है तो वेक्टर प्रोडक्ट उनका 0 हो जाएगा. प्लस अब यहाँ पर है j cap क्रॉस I cap. यूजिंग दिस कंप्लीट रोटेशन हियर I, हियर लेट अस से j, यहाँ पर हमने लिख दिया k. रोटेशन होता है राइट हैंड साइड में, इस तरीके से रोटेशन होता है. तो I क्रॉस j है ना, I क्रॉस j इज k. तो यहाँ पर क्या है j क्रॉस I, तो ये हो जाएगा माइनस k. आंसर होगा माइनस y k कैप. ठीक है. j क्रॉस I
माइनस के हुआ, फिर आगे प्लस, अब के क्रॉस आई है, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई आंसर होगा जे, यहाँ पर हो जाएगा प्लस जेड जे कैप। अब ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों आप चेक करिए, दोनों सेम। इसका आंसर है फाइनल जेड जे कैप माइनस वाई के कैप। यहाँ पर भी आई कैप तो है नहीं, तो पहले जे कैप लिखेंगे हम, जेड जे कैप माइनस वाई के कैप। क्लियर? हमने यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन देखा, इधर हमने डिटर्मिनेंट का जो शॉर्टकट है वहां से देखा। बेसिकली यही से आपका ये डिराइव होता है, अगर इसका डेरिवेशन चाहिए, इसका डेरिवेशन तो यही से आता है। बट ये यहाँ पर इसलिए भी इजी है क्योंकि यहाँ पर सेकंड जो वेक्टर है इट इज हैविंग ओनली वन कंपोनेंट, दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट इजी। अदरवाइज हम इसी तरीके से जाएंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट गिवन है आपके पास, ए बार प्लस आई कैप 2 ए बार माइनस 5 ए कैप इज इक्वल टू 0 बार, दिस इज गिवन। तो इसे हम यूज करेंगे, हमने ए बार प्लस आई कैप का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो लिख देते यहाँ पर गिवन, गिवन ए बार प्लस आई कैप प्लस 2 ए बार माइनस 5 जे कैप इज इक्वल टू 0 बार। So therefore, अब ए बार प्लस आई कैप जेड जे माइनस वाई के, जेड जे माइनस वाई के प्लस 2 ए बार, तो 2 इन ब्रैकेट ए बार मतलब एक्स आई वाई जे जेड के, एक्स आई वाई जे जेड के माइनस 5 जे कैप, सो माइनस 5 जे कैप इज इक्वल टू 0 बार। ठीक है, राइट हैंड साइड पर क्या है, 0 बार। नाउ देयरफॉर अब लेफ्ट हैंड साइड पर कंप्लीटली लाइक टर्म्स हम ऐड कर देंगे, सो विल गेट अ वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ आई जे के। तो आई के टर्म कौन कौन से पहले देखते हैं, आई के टर्म जे के, दिस इज टर्म ऑफ आर, यहाँ पर आई के और कोई टर्म है, ठीक है। नाउ 2 विल बी गेट मल्टीप्लाइड विद दिस वन, सो इट बिकम्स 2x आई कैप। फिर जे के टर्म्स देखते हैं, दिस इज टर्म ऑफ जे, अनदर वन यहाँ पर, और ये तीसरा, तीन टर्म्स है जे कैप के, तीनों को हम ऐड कर देते हैं। तो प्लस मैंने लिख दिया, ब्रैकेट लेता हूँ यहाँ पर जेड जे कैप, यहाँ से आ जाएगा जेड, फिर 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो 2 इंटू वाई दैट इज प्लस 2y, और लास्ट में माइनस 5j, यहाँ पर आएगा माइनस 5 एंड दिस इज जे कैप। अब के में देखते हैं, के में क्या है, माइनस वाई के कैप और जेड के कैप, तो प्लस हमने कर दिया ब्रैकेट में माइनस वाई के कैप, यहाँ पर आएगा माइनस वाई प्लस जेड के कैप, तो प्लस जेड इंटू के कैप। And now this is equal to what again? This is equal to 0 bar, right hand side. तो राइट हैंड साइड पर 0 बार है, इसका मतलब क्या हुआ, टेबल के लिए हम लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर है 0 बार, 0 बार मतलब 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप, राइट हैंड साइड 0 बार can be written like this one. By equality of vectors, by equality of vectors, we get three relations over here. First one, I cap का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2x से इधर 0, so 2x equal to 0, and therefore what, x is equal to 0, तो x का वैल्यू तो हमें मिल गया। सेकंड इक्वेशन हमें मिलता है z plus 2y minus 5 is equal to 0. It means what, 2y plus z equal to plus 5. थर्ड इक्वेशन जो है माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो इट विल रिमेन एज इट इज, वाई और जेड सीक्वेंशियली जाता है। तो हमने इस इक्वेशन को दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, इधर भी प्लस जेड है, इधर भी प्लस जेड, तो हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो लेट अस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2,
1 माइनस 2 कर रहे हो तो क्या होगा 2i माइनस माइनस y, so it becomes 3y. z माइनस z तो हो जाएगा 5 माइनस 0 is 5 and therefore y is equal to 5/3. कुछ गड़बड़ हुआ क्या यहाँ पे? 2z आएगा 2z, यस 2 into z, z के कैप में z के कैप में यहाँ पर 2 आएगा 2 into z, ठीक है ना 2 into z के कैप, तो के कैप का जो कोएफिशिएंट यहाँ पर इट इज 2 into z, दैट इज 2z. यहाँ पर जो है इट इज 2z, 2z मैंने चेंज कर दिया, इधर भी आपको मिला है क्योंकि फ्रैक्शन में आंसर आया तो तुरंत में पता करना चाहिए उसको भी गड़बड़ हो रहा है 2z. तो अगर ये 2z है तो 1 माइनस 2 करके नहीं होगा, फिर हमें अलग तरीके से करना होगा, ये वाला चेंज कर लीजिए. दिस इज 2z, हियर आल्सो दिस 2z. Now we have to solve equation 1 and 2 simultaneously to find out value of y and z. क्लियर? y z की वैल्यू ढूंढने के लिए हमें दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा. तो 1 में 2y है और 2 में माइनस y है, इसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस 2y, ठीक है, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे. तो यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस 2 इंटू 2, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा, सर्कल में लिखा, इट इज इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन नंबर 2. So this is 2y here and then 2 into this, that is minus 2y, 2y minus 2y कट हो गया. फिर बच गया आपके पास z प्लस 2 into 2 4z, है ना, 2 into 2 4z, so it becomes 5z which is equal to 5 plus 2 into 0 0, so that is 5 and therefore z is equal to 1. y की वैल्यू चाहिए तो हम कहीं से भी ले सकते हैं. अगर हमने इक्वेशन 2 से लिया, इक्वेशन 2 implies what, माइनस y प्लस 2z मतलब 1 is equal to 0, so minus y equal to minus 2 and therefore y is equal to 2. So we have to find out a bar and therefore a bar equal to what, so a bar is nothing but x I cap, y j cap, z k cap, ठीक है. x मतलब 0, I cap, y मतलब 2, z मतलब 1, k cap. So basically this is nothing but 2j cap plus k cap. So that is your answer. So is there any doubt? कुछ डाउट है तो पूछिए. Okay. Let us take the next question. Question number 15. Okay, so next question is prove that sin of alpha plus beta equal to sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. So this is the formula from trigonometry. We know that sin of a plus b, it is sin a cos b plus cos a sin b. But that formula we have to prove now using vector method. So I have drawn xy plane over here, two-dimensional xy plane. In this, we have taken vector OP bar, making an angle of alpha in positive direction of x-axis, vector OQ bar, making an angle of minus beta, it is in the negative direction. Clear? Now here, let this vector OP bar as well as vector OQ bar are unit vectors. Are unit vectors because we are not concerned about anywhere about magnitude. We are concerned about direction. We are concerned about angle. So let us take magnitude of this one as 1. अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है 4 होता है, इधर 3 होता है, इट डजंट मेक एनी सेंस क्योंकि एंगल तो आपका सेम रहने वाला है. यू आर वर्किंग ऑन एंगल अल्फा प्लस बीटा, ठीक.
So let mod of OP bar, mod of OQ bar is equal to 1. Therefore, mod P bar equal to mod Q bar, small q bar, it is equal to 1, where P and Q are position vectors. So this is P bar, here it is Q bar. अब एक बार अगर हमने यहाँ पर एंगल अल्फा है, इधर एंगल माइनस बीटा है, तो जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, considering that mod of P bar is equal to 1, mod of P bar equal to 1, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं they are in terms of hypotenuse and cos of this angle, ठीक है, फिर sin of this angle। यहाँ पर हो जाएगा P के कोऑर्डिनेट्स होंगे cos अल्फा एंड sin अल्फा। सिमिलरली जो पॉइंट Q है इसके कोऑर्डिनेट होंगे cos ऑफ माइनस बीटा कॉमा sin ऑफ माइनस बीटा। एंगल इधर माइनस बीटा है, नेगेटिव डायरेक्शन में एंगल माइनस बीटा है। नाउ दिस इज नथिंग बट जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q है, cos ऑफ माइनस बीटा is cos beta and sin of minus beta is minus sin beta। ठीक, so therefore position vector P bar becomes what? X component, Y component. So this is the X component, so it is cos alpha I cap plus Y component, that is sin alpha j cap. So that is nothing but P bar, and Q bar is nothing but cos beta I cap प्लस यहाँ पर माइनस साइन है तो हो जाएगा माइनस साइन बीटा जे कैप। Now if we find out cross product of this one, P bar cross Q bar, ठीक है, so now P bar cross Q bar is nothing but mod P bar mod Q bar, ठीक है, into sin। Let us see what is the angle between them. What is the angle between them?